Hello, my dear students. This is PSP Science and Life Science online classes. In my online classes, you will get the knowledge of the subjects like biochemistry and microbiology. These two subjects I will cover, which are applicable at different industries like pharmacy. फार्मेसी के सब्जेक्ट्स, फार्मेसी के बच्चे बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, नर्सिंग के बच्चे बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज लाइक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट का बहुत एप्लीकेशन है, माइक्रोबायोलॉजी का भी एप्लीकेशन है. सो दीज सब्जेक्ट्स आर बेसिकली एप्लीकेबल एट द कॉलेज लेवल. In addition to these two subjects, I will cover some subjects like science, maths, computer, English, chemistry, and biology, which are applicable at the school level. Okay. So in my first video, I already started this subject, that is biochemistry. I explained the introduction of the biochemistry, what is the what is the main definition of the biochemistry, what we are studying in biochemistry, and I already started one biomolecule, that is carbohydrates. Okay, so in this video I will explain the further topics of the carbohydrates. Before starting the carbohydrate, we must know what is the chemistry of the carbohydrates. Okay, what is the chemistry of the carbohydrates? Carbohydrates mainly contain three elements: carbon, hydrogen, and oxygen, in the ratio of 1:2:1. Here 2:1, the ratio is very equivalent to the ratio of the water. In water, 2 molecules of water, hydrogen, and 1 molecule of oxygen is present. So we can say carbohydrates are hydrates of carbon. We can also say carbohydrates are hydrates of carbon, and we can write the formula just like this: carbon and water, hydrates of carbon, okay, to the power n, where n is equal to 3 or more. 3 और मोर, मिनिमम 3 होता है, मैक्सिमम उससे ज्यादा होता है, 3 से कम नहीं होता. ओके, सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उसमें 3 कार्बन होते हैं. इफ वी हीट शुगर, अगर हम शुगर को हीट करते हैं, देन व्हाट विल हैपन, शुगर के क्रिस्टल्स कुछ फॉर्म होते हैं एंड वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है. सो दिस activity can confirm that carbohydrates contain some water, so we can call this hydrates of carbon. Carbon is also called as saccharides. Carbon is also called as saccharides. Saccharides, carbohydrates is also called as saccharides. Saccharides is actually derived from the Greek word saccharon. Saccharon means sugar. Okay, sugar is actually sweet in taste. Sugar is actually sweet in taste. So mostly all the foods which are sweet in taste may contain carbohydrates. Okay, the example of the simplest carbohydrate is glucose. And the polymer, the larger molecule of the carbohydrate example is starch. This is found in potato. Potato में starch पाया जाता है, और glucose जो है, this is the main fuel. This is the main fuel in our body which provide energy. And this is the main carbohydrate from which other type of monosaccharides or monomers are also derived. Okay. Saccharides, as the name suggests, saccharides, carbohydrates, on the basis of this name saccharides, carbohydrates को 4 classes में divide किया गया है: monosaccharides, disaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. Monosaccharides means, mono means single. When single glucose unit अगर present हो, okay, तो उसे हम कहते हैं monosaccharide. Disaccharides में 2, जब 2 ग्लूकोज या ग्लूकोज फ्रक्टोज, 2 मोनोसेक्राइड्स जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, डाइसेक्राइड. ओलिगोसेक्राइड्स जो होते हैं उसमें 2 to 10 मोनोमर्स. मोनोमर्स मीन सिंगल यूनिट को मोनोमर कहते हैं, और जब मोनोमर, बहुत सारे मोनोमर ज्वाइन होते हैं तो उसको कहते हैं पॉलीमर. तो 2 to 10 मोनोमर्स अगर ज्वाइन होते हैं तो बनाते हैं ओलिगोसेक्राइड्स. पॉली मीन्स मेनी. ओके, सो मोर देन 10.
10 से अगर ज्यादा होंगे तो उसको हम कहेंगे पॉलीसेकेराइड्स. द डिटेल्स ऑफ दीज क्लासेस आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास. सो up to this video we know carbohydrates are called as hydrates of carbon. Carbohydrates are also called as saccharides. There is one more name, that is carbohydrates are also called as polyhydroxyaldehydes and polyhydroxyketone. कार्बोहाइड्रेट्स को polyhydroxyaldehydes और polyhydroxyketone भी बोलते हैं. polyhydroxyaldehyde और polyhydroxyketone. अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स का हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर में इनके कार्बन चेन होती है. ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लूकोज का एग्जांपल लें और यहाँ पर हम फ्रक्टोज. अब इसको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्यों बोलते हैं? लेट्स सी. ये हो गया स्ट्रक्चर ग्लूकोज का. अब फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखिए. फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में भी आप देखेंगे कि 6 कार्बन चेन है जैसे कि ग्लूकोज में है. अब दोनों में डिफरेंस क्या है हमें ये देखना है. एक को हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और एक को कहते हैं हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज. क्यों कहते हैं ये हमें देखना होगा. अब पॉली वर्ड आपको पता चल रहा होगा. पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मीन्स मेनी. आप as you can see in glucose structure as well as in fructose structure. Okay, hydroxy group is present. This hydroxyl group is present. So that's why it is called as polyhydroxy. Okay, now aldehyde and ketone. Here aldehyde group present and here ketone group is present. Ketone group is present, here aldehyde group is present. Okay, so this aldehyde group and this ketone group is present. That's why glucose is categorized under the family aldose and fructose is categorized under the family ketose. Those carbohydrates which contain ketone group are called ketoses and those carbohydrates which contain aldehyde group are called aldoses. Up here aldehyde group is present at the first carbon. Here ketone group is present at the second carbon. But all aldehyde group is always present at the first carbon, at the terminal carbon. Then it is called as aldose. But this ketone position is not fixed. It is not always present at the second carbon. It may be at any carbon. Okay, that's why this ketone group is named on the basis of the presence of the carbonyl group, or you can say ketone group at any other carbon except first. इसमें फर्स्ट में नहीं होगा और किसी भी कार्बन पे अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम कीटोसिस कहते हैं. बेस्ट एग्जांपल है फ्रक्टोज. एल्डोज का बेस्ट एग्जांपल है आपका ग्लूकोज. अब मैं आपको शो करती हूँ. लेट मी शो यू वन पिक्चर which will show you the family of the different family of the aldoses and different family of the ketoses. Let me show you. See, as you can see here, सब में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है. ये देखिए, ये
यहाँ पर ये सब में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, और कहाँ प्रेजेंट है? फर्स्ट कार्बन पे। सो दिस इज द फैमिली ऑफ द एल्डोजेस। ये सारे एल्डोजेस की फैमिली है। स्टार्ट कहाँ से हुआ है आपका? 3 कार्बन से। सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट या सिंपलेस्ट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज होता है, वो होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये देखिए, ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है, वो होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये 3 कार्बन है। ओके, अब ये फॉर्मूला देखिए आप, CH2O होल टू द पावर n। तो अगर n पुट करते हैं हम, तो n की वैल्यू हो जाएगी, तो कार्बन हो जाएगा 3, H2 टू से 6 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और O भी 3 होगा। तो यहाँ पर देखिए C3H6O3 ग्लिसरॉल्डिहाइड में। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम n की वैल्यू 4 रखते हैं, तो ये 4 कार्बन, 3 कार्बन से ही डिराइव होता है आपका 4 कार्बन। 4 कार्बन देखिए, 4 कार्बन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट आपका एग्जाम्पल है D3OS और डी एथ्रोज। इस तरीके से 5 कार्बन, 4 कार्बन वाले से 5 कार्बन वाले डिराइव्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जाइलोज, इसमें देखिए 1 2, ये देखिए 1 2 3 4 एंड 5, 4 से 5 डिराइव्ड हुए। ओके, यहाँ देखिए ये सारे 5 कार्बन के एग्जाम्पल है, 3 4 5। अब 5 कार्बन से आपके 6 कार्बन कंटेनिंग एल्डोज, डिफरेंट एल्डोज ग्रुप्स डिराइव्ड हुए हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है आपका ग्लूकोज। ये ठीक है, ये ग्लूकोज है। तो दीज ऑल आर द फैमिली, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एल्डोजेस। एल्डोजेस। ओके, नाउ लेट मी शो यू द फैमिलीज ऑफ द कीटोजेस। यहाँ सब में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, और 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, सबके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। 3 कार्बन का बेस्ट एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल्डिहाइड। नाउ लेट मी शो यू द फैमिलीज ऑफ द कीटोजेस। ओके, फैमिलीज ऑफ द कीटोजेस। अब कीटोजेस की फैमिली में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, देखते हैं कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है। देखिए, एस यू कैन सी, ये यहाँ पर देखिए सबसे सिंपलेस्ट जो है उसका नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट। ओके, यहाँ भी देखिए, ये एग्जाम्पल आपका देखिए 3 कार्बन का एग्जाम्पल है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, 4 कार्बन का एग्जाम्पल है आपका डीएरिथ्रोज, 5 कार्बन का एग्जाम्पल है आपका, बेस्ट एग्जाम्पल है राइबोलोज, 6 कार्बन का आपका एग्जाम्पल है जो मैंने बताया था आपको, वो है फ्रक्टोज। ओके, सो these all are the families of the aldoses, families of the ketoses based on the number of the carbon chain. Okay, so इस तरीके से आपने देखा कि different classes of the carbohydrates are based on the position of the aldehyde group and position of the ketone group and named accordingly. So in this way you learn, आज आपने क्लास में लर्न किया कि कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, इनको सैकराइड्स भी बोलते हैं। सैकराइड्स के बेसिस पे इनको मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, ऑलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स कहते हैं। इन एडिशन टू दिस दे आर आल्सो polyhydroxyaldehyde and polyhydroxyketone. Okay, they are also called as polyhydroxyaldehyde and polyhydroxyketone. एल्डोजेस, अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो उनको एल्डोजेस कहते हैं, और अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो उनको कीटोजेस कहते हैं। So, see,
families of carbohydrates, aldoses, ketoses. Aldehyde group, ketone group. एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ये होता है, कीटोन का स्ट्रक्चर ये होता है. कार्बोनिल ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे है तो उनको एल्डोसिस कहते हैं, और फर्स्ट कार्बन के अलावा और किसी जगह पे है तो वो कीटोसिस होते हैं. ओके, फर्स्ट कार्बन पे नहीं होना चाहिए, इसके अलावा और किसी में होना चाहिए कीटो ग्रुप, तो आपका ये क्या कहलाएगा, कीटोसिस. कीटोसिस में एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बता दिए. नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन. ये डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब मैंने आपको बता दिया. ठीक है, अब आपको पता है कि डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, सेल के अंदर. सेल में ये आपको पता होना चाहिए, ये सेल में आपके दो तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं. टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन अवर सेल. सेल इज मेन मशीनरी ऑफ अवर बॉडी, main engine of our body. Two types of cells are present in our cell. One is inorganic molecules, other is organic molecules. Inorganic molecules basically contain salt, mineral ions and water. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन. ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपके जो सॉल्ट्स और मिनरल आयंस है वो तो वाटर में डिसॉल्व होते हैं एक्वस फेज में, सेल के प्रोटोप्लाज्म में एक्वस फेज में डिसॉल्व होते हैं. और जो नॉन एक्वस फेज होता है और समवेयर एक्वस फेज होता है, उनमें ऑर्गेनिक जो ये बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ये कैसे अटैच होते हैं, ये सेल के अंदर ही सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स को बनाते हैं. ओके, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एक्चुअली फाउंड एज कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, क्रोमोसोम्स एंड अदर ऑर्गेनल्स. क्रोमोसोम्स में डीएनए आरएनए होता है. डीएनए आरएनए कहाँ से ड्राइव होता है, न्यूक्लिक एसिड से. न्यूक्लिक एसिड्स कहाँ से ड्राइव होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से. ओके, और न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ से ड्राइव होते हैं, डिफरेंट एमिनो एसिड से, प्रोटीन से. सो दीज ऑल आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर. सो in the further videos, I will explain one by one how the different biochemical reactions are interrelated with each other. Thank you for today's lecture. In the next class, we will study the detailed about the different classes of the carbohydrates like monosaccharide, disaccharides, oligosaccharides, and polysaccharides. Thank you so much for today's lecture. Come and join my online class. Okay. Bye, everybody.